बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We start with the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful. We welcome you all, parents and students, in the session of 2020 and 21. In this session, in the subject of physics, we will with you. Before starting our today's lecture, I would like to introduce you the book which we use for our study in grade metric. This is the book, a textbook of physics prescribed by STB Sin Textbook Board Jamshoro. This is consisted on 19 chapters, and these 19 chapters included all branches of almost physics. The first chapter is the introduction to physics, and the last chapter of this book is nuclear physics. After introducing the book, I would like to describe you how to fill your physics copy. So this is your cover page of your copy. So first you have to fill this by your personal information, name, class, section, subject and roll number. After that, the face sheet of the copy you will fill by the student ID, GR number, student name, father's name, section, roll number, subject and the prescribed book, which is the book, the textbook of physics for class 10 prescribed by STB. Then subject, teacher name. After that, you have to maintain your index by the given content, and this content is given you. This will maintain by week and by date for the first semester midterm, as you have given the content for the midterm examination. After completing the index, day wise you have to maintain the title page for first semester midterm start. After maintaining this page, you have to maintain the title page of chapter number 1, which is introduction to physics. Chapter number 1, introduction to physics. And after that you will start your copy work by the given content, day wise and week wise. Now we are starting our today's lecture, which is consisted of chapter number 1, and the name of the chapter 1 is Introduction to Physics. But before going to our chapter, as we are student of science and we are studying science, therefore we have to know first what is science. अपने ऑल अराउंड हम देखते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स हैपन हो रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं. तो इन तमाम के लिए हमारे जहन एक क्वेश्चन इनमें डेवलप होते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं. पहला सवाल तो हमारे पास आता है कि भाई ये जो आसपास हमारे हो रहा है, ये चीज़ें मौजूद हैं, ये क्या हैं. उसके बाद ये जो प्रोसेसेस, ये इवेंट्स हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, एंड थर्ड वन, इनकी रीज़न क्या है कि ये क्यों हो रहे हैं. अब ये तमाम तर क्वेश्चंस जो हैं किसी प्रोसेस से रिलेटेड, किसी फेनोमेना से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो जो हमें नज़र आ रहे हैं, वो जो नज़र नहीं आ रहे, इन तमाम से रिलेटेड हमारे जहन में आते हैं. तो इसका जो आंसर है, ऑल दीज क्वेश्चन हैव वन आंसर, विच इज साइंस. द वर्ड science is came from an origin, Cynesia,
Scientia means to know or the knowledge. And what is the best definition for science? It is the study of nature for benefits of men. For benefits of men. इन इंसान के फ़ायदे के लिए ये नेचर की स्टडी है। अगर जितनी चीज़ें आपके सामने आज नज़र आ रही हैं हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, ईजियर बनाना चाहते हैं, तो इस तमाम तर चीज़ों को देखने के लिए कि भाई ये क्यों ईजियर क्यों बनाना चाह रहे हैं, उसके पीछे जो रीज़न है वो सिर्फ रीज़न ये है कि इंसान को किस तरह से फ़ायदा हासिल हो। ट्रांसपोर्टेशन के जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज हम देखते हैं या मुख्तलिफ जो है चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, मुख्तलिफ कार्स डिज़ाइन की जा रही हैं या ईजियर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एरोप्लेन है या ट्रेन है, यानी बर्ड ट्रेन डिज़ाइन की गई हैं, तो ये तमाम किसके लिए? बेनिफिट्स ऑफ मैन के लिए। इसी तरह से अगर किसी केमिकल का कोई इफेक्ट बॉडी में देखा जा रहा है कि भाई उसके इफेक्ट से ब्लड के पीएच में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर इसी तरह और जो केमिकल्स हैं वो बॉडी पर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये तमाम क्यों हम जानना चाह रहे हैं? ताकि मैन इसके बेनिफिट्स इसको मिल सकें और इसके नुकसानात से इसको बचा सकें। तो ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो कि स्टडी की जा रही हैं इंसान के बका के लिए, इंसान की भलाई के लिए, इंसान की फलाह के लिए, बेनिफिट्स ऑफ मैन के लिए। अब साइंस को इनिशियली, क्योंकि साइंस एक नॉलेज है और जाहिर सी बात है नॉलेज जो है उसमें जो वुसअत है वो आती रहती है, और जितनी यानी वुसअत आती रहेगी तो उसको अलहदा डील करना ईजियर होगा, बजाय इसके कि उसको एक ही जगह पर डील किया जाए। मीन के साइंस को इनिशियली जो है क्लासिफाई किया गया, इसकी कैटेगरीज बनाई गई इनिशियली। तो दो कैटेगरीज की बनाई गई, एक जो कि डायरेक्टली लाइफ स्टडी थी जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरी अगरचे लाइफ स्टडी नहीं थी, नॉन लिविंग आइटम्स की स्टडी थी या नॉन लिविंग स्टडी थी, गैर जानदारों की स्टडी थी, या फिर दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं लाइफ सपोर्टिंग जो आइटम्स हैं उनकी स्टडी। ये हमारे पास है फिजिकल साइंस। तो वो साइंसेस जो डायरेक्टली लाइफ को स्टडी कर रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैकेनिज्म हो, उसके अंदर होने वाले जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको डील कर रही है, या उस पर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को डील कर रही है, डायरेक्टली लाइफ के साथ जो अटैच है, तो ये हैं बायोलॉजिकल साइंस से बिलोंग करेंगे। और जो लाइफ को सपोर्ट कर रही हैं कि उन तमाम चीज़ों को लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होना चाहिए, या उन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने वाली जो साइंसेज हैं वो फिजिकल साइंस में आती हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है फिज़िक्स, ये भी फिजिकल साइंसेज का ही एक आइटम है, एक ब्रांच है। तो फिजिकल साइंसेज में हम डील कर रहे हैं अपनी जो ब्रांच है फिजिक्स, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी का ये स्टडी है, और इनके इंटरैक्शन का कि इनमें जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप हैं वो डील करना है। कंप्लीट डेफिनेशन हम कहेंगे तो हम कहेंगे साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the matter and energy and interaction between them or the mutual relationship between them. मैटर क्या है? तो मैटर क्लास 9 में भी आप पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम, वो तमाम चीज़ें जिनके मास और वॉल्यूम हो, यानी वो स्पेस भी कवर कर रही हैं और उनका कुछ मास भी है, तो दे आर कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल्स में देखें तो एयर, वाटर, स्टोन एटसेट्रा, ये तमाम चीज़ें मैटर में आ रही हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वन जो हमारे पास टर्म है वो है एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी
टू डू वर्क इन अ बॉडी। किसी बॉडी में वर्क डन एबिलिटी, वर्क डूइंग एबिलिटी जो है, दिस इज द एनर्जी। आप देखें कि अगर आप दिन भर काम करें और उसमें आप फूड इंटेक ना करें तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी। तो उसकी रीज़न क्या है कि इस वक्त फूड इंटेक ना करने की वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी हुई, जिसकी वजह से वर्क आप नहीं कर सकते। इसी तरह से फ्यूल एज ए एनर्जी जो है इंजन में यूज हो रहा है, अगर फ्यूल मौजूद ना हो तो इंजन वर्क नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में है वो एनर्जी है, अब वो अगर मौजूद ना हो तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस बहुत ही महंगा हो, बहुत ही एक्सपेंसिव हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होगी तो वो नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो टर्म है वो है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन कहते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ वन ऑन अनदर। एक आइटम का, एक टर्म का दूसरे टर्म पर जो अफेक्ट है, उसकी वजह से जो अफेक्ट है, इसकी समझने के लिए ये बड़ी आसान सी बात है। वो ये कि अगर हम ये देखते हैं कि कहीं साउंड प्रोड्यूस हो रही है, किसी जगह साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अलार्म की फॉर्म में कह दें आप कि एक अलार्म है और वॉच है, वहाँ पर अलार्म जो है उसमें से साउंड क्रिएट होती है, साउंड आ रही, लेकिन आगे एयर मौजूद ना हो या एयर मौजूद हो, कान सुनने की सकत ना हो, तो क्या ख्याल है कि आपको उस अलार्म की आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ बात यही है कि दोनों का एक दूसरे पर जो अफेक्ट है, इस अफेक्ट को अगर हम ब्रेक कर दें तो ये इन दोनों का इंटरेक्शन ब्रेक हो गया। इंटरेक्शन क्या है? एक दूसरे पर इन दोनों का इन्फ्लुएंस। और इसी तरह से जो फिजिक्स जो है इस फिनोमेना को जैसे एक्सप्लेन कर रही है, तो इसी तरह से मैटर और एनर्जी का जहां जहां इंटरेक्शन हो रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन जिस जिस जगह आ रही है, तो वो एक्सप्लेनेशन जो है हम बाय फिजिक्स कर सकते हैं। यानी यहाँ ये बात समझ सकते हैं कि साइंस, जितनी साइंसेज हैं, ये साइंसेज जो हैं इन वर्ड हाउ और वाई के जो क्वेश्चंस हैं इनको एक्सप्लेन कर रही हैं, ना कि इन क्वेश्चंस को जनरेट कर रही हैं। ना ही ऐसा है कि भाई कोई प्रोसेस किसी साइंस की वजह से हो रहा है, बल्कि इन्वेंशन के पीछे भी ये रीज़न मौजूद है, किस तरह से जो है मुख्तलिफ रिएक्शंस को, मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं उनको जो है यकसा मिलाकर एक जगह करके किस तरह नई चीज़ें जो है बनाई जा सकती हैं। तो इस एतबार से ये हमारे पास हो गई फिजिक्स। अब फिजिक्स की ब्रांचेस की तरफ चलते हैं, और ब्रांचेस में फर्स्ट ब्रांच हमारे पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज दी फिजिक्स ऑफ मोशन। फिजिक्स ऑफ मोशन यानी ये मोशन की फिजिक्स कहलाती है, कि मीन के इसमें मोशन को स्टडी किया जाता है। और ये मोशन है क्या? मोशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड मोशन। कि एक बॉडी है वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी प्लेस को चेंज करती है या अपनी प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है। सो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब बॉडी आई अपनी सराउंडिंग के एतबार से, तो दिस इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन की स्टडी मैकेनिक्स कहला रही है। क्यों? क्योंकि मोशन को दो लिहाज से ये डील कर रही है। नंबर वन, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट फोर्स रेफरेंस, जहां फोर्स का तज़किरा नहीं करते हैं बल्कि मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डील किया जाता है, तो वो हमारे पास मैकेनिक्स का एक पार्ट है। इसी तरह से दूसरी जगह हम ये कहते हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है और ब्रेक की एप्लीकेशन पर ये बॉडी जो है यानी रुकती है। तो पहले तो ये बात ये कि इस बॉडी का एक वेट है, इस बॉडी का एक वेट है और ये कुछ लोड अगर कैरी कर रही है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ ये होता है कि कितनी फोर्स से ये बॉडी इसको कैरी कर सकती है। अब यहाँ पर मूवमेंट तो आ रही है, मोशन तो आ रही है, मोशन की बात आ रही है, लेकिन विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स आ रही है। यहाँ रेफरेंस ऑफ फोर्स की बात आ रही है क्योंकि उसे
कैरी करने के लिए फोर्स चाहिए। अब ये फोर्स क्या भला है, व्हाट इज दिस? तो फोर्स इज एन एजेंट विच मूव अ बॉडी और टेंड टू मूव अ बॉडी। फोर्स एक एजेंट है जो कि क्या करता है, किसी बॉडी को मूव करता है, ये मूव करने की कोशिश करता है, इस तरह रेस्ट में लाता है, ये रेस्ट में लाने की कोशिश करता है। और इसको अगर हम कंबाइनली इस डेफिनेशन को देख ले तो हम ये कह सकते हैं किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करने या चेंज करने की कोशिश करने वाला जो एजेंट है, दिस इज कॉल्ड द फोर्स। यानी फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज द फॉर्म ऑफ अ बॉडी और स्टेट ऑफ अ बॉडी और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। तो ये हो गई हमारे पास मैकेनिक्स के लिहाज से। आप देखें तो हमारी डेली लाइफ में जो है कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैकेनिक्स से रिलेटेड, मीन के अगर एक कार मूव कर रही है और दूसरी कार उसके साथ मौजूद है तो हम ज़रूर ये कहते हैं कि एक कार की स्पीड ज़्यादा है, मीन कि उसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप देखें कि स्टेशनरी बुक है कहीं रखी हुई है तो वो स्टेशनरी कब तक रहेगी, जब तक कि उसको जो है किसी एक्सटर्नल फोर्स से हम जो है मूव नहीं कर देते, वरना उसकी एक फोर्स है और टेबल की एक रिएक्शन फोर्स है जो कि उसको संभाले हुए है। यानी किसी भी फोर्स को आप कब जज कर सकते हैं, जब उन दोनों फोर्सेस में से कोई एक कम हो, यानी अनबैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस हो। बिल्कुल ऐसी मिसाल ले लें कि एक चेयर पर आप बैठे हैं, अचानक चेयर टूट जाती है या चेयर किसी तरह से स्लिप कर जाती है, तो आप अगर गिर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके वेट के बराबर फोर्स चेयर लगा रही थी और तभी आप नॉर्मल रिएक्शन के लिहाज से या सरफेस फोर्स रिएक्शन के लिहाज से आप बिल्कुल स्टेशनरी फॉर्म में थे। नाउ द सेकंड ब्रांच एंड दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी is the study of electric charges। इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी है ये। चार्ज क्या है? चार्ज इज दी एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और दी पॉइंट्स टू अट्रैक्ट और रिपल। अट्रैक्शन या रिपलियन की एक ये टेंडेंसी है पार्टिकल्स की या फिर ऑब्जेक्ट्स की। अब कहीं चार्ज अगर आ जाता है तो वहां पर ये अट्रैक्शन या रिपलियन के सेंस हम देखते हैं। तो नॉर्मली आप ये देखें कि स्क्रू ड्राइवर से जब स्क्रू को लूज किया जा रहा होता है तो हम ये देखते हैं उस रबिंग की वजह से उन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाती है, दोनों अटैक कर रहे होते हैं। तो वो भी इस वजह से हुआ कि चार्जेस मौजूद हैं। अगर हम इस तरफ जाएं कि मैग्नेटिज्म या मैग्नेट में जो अट्रैक्शन है उसके रीज़न भी असल में चार्जेस ही हैं। अब इन इलेक्ट्रिक चार्जेस की दो स्टेट में स्टडी का नाम इलेक्ट्रिसिटी है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं इस इन दी फॉर्म ऑफ मोशन। अब वो मोशन की फॉर्म हो या रेस्ट की फॉर्म हो, इन दोनों फॉर्म्स में इन चार्जेस के इफेक्ट्स को डील करती है। अब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से यानी हमारे लिए हेल्पफुल है या हमें हमारे किस तरह से जो है काम आ रही है, किन जगहों पर ये एक्सप्लेनेशन दे रही है, तो इसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल मैं यूँ लूँगा कि एक कंडक्टर है जिसमें सफिशिएंट करंट पास हो सकता है, लेकिन एक दूसरा कंडक्टर है जिसमें कैपेसिटी करंट पास करने की इससे ज्यादा है। अब जब दोनों से करंट पास किया जाए, बिल्कुल ये लें आप, एक थिन वायर ले लेते हैं और एक थिक वायर ले लेते हैं, जब लोड या पावर ज्यादा कर दिया जाएगा तो हम ये जरूर देखेंगे जिसका स्ट्रक्चर डैमेज होने का ज्यादा खतरा है वो ये है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि करंट की एक सफिशिएंट अमाउंट जो है सफिशिएंट रेजिस्टेंस पर, यानी करंट को पास करने की हर एक मटेरियल की यानी कंडक्टर्स में हर एक की एक खास जो पावर होती है, खास वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं उसका रेजिस्टेंस पावर। अब ये रेजिस्टेंस पावर कम होगा तो करंट ज्यादा पास होगा, रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगा तो करंट कम पास होगा। ये उसकी कैपेसिटी की बेस पर है और थिकनेस की बेस पर है। अब ये थिकनेस जितनी कम, इसका मतलब है रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हुई, करंट की अमाउंट लिमिटेड पास होगी, और अगर ज्यादा पास करेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि फ्यूज का ट्रिप हो जाना, लोड ज्यादा हो जाता है। फ्यूज एक जो आइटम जो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में देखते हैं या फिर हमारी जो घर की जो वायरिंग होती है उसमें मौजूद होता है, ताकि बहुत बड़े जो एक पावर का जो इफेक्ट होगा जिससे हमारी अप्लायंसेस जो डिसऑर्डर हो सकती हैं उससे बचा जा सके। तो इस लिहाज से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल है कि उसके लिहाज से पावर मेंटेन रखनी है, और पावर अगर मेंटेन रखने के लिए कंडक्टर में कोई ऐसा सिलसिला नहीं है तो हम वहाँ फ्यूज़ वगैरह का या ब्रेकर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से डिस्चार्जिंग वगैरह का कहीं सिलसिला हो
तो वहाँ पर जो है अर्थिंग का सिलसिला होता है, अर्थिंग को यूज़ किया जा सकता है, अर्थिंग की टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हम इलेक्ट्रिसिटी में डील करते हैं। इसके बाद जो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये असल में क्या है, ये उन प्रिंसिपल्स, ऑब्जर्वेशंस, लॉस को डील कर रही है जो रिलेट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को। यानी इंटरेक्शन जो शो कर रहे हों किस चीज़ के, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इनिशियली ये तो आप देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी हमारे पास अलग ब्रांच मौजूद है, तो इसी तरह से मैग्नेटिज्म को अलग ब्रांच के लिहाज से स्टडी किया जाता था। लेकिन 19वीं सेंचुरी में, मीन के 1820 में, ऑरिस्टड नेम एक साइंटिस्ट था जिसने कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी देखी कि इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, तो उसके बाद इस ब्रांच को डिस्कवरी मिली। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक इंसुलेटेड वायर के करीब मैग्नेटिक कंपास उन्होंने रखा, तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करने लगी जब उस वायर से करंट पास हुआ। यहाँ डिफ्लेक्शन शो हुआ, जिस डिफ्लेक्शन से उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि ज़रूर यहाँ पर करंट के पास होने पर इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक इफेक्ट मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इसके डेवलप होती है। वो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से ये जो कंपास नीडल है ये मूव करती है। अब यहाँ इस बात का अंदाज़ा किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो है ब्रांच जो है वो डिस्कवर हुई। अब इसकी डेली लाइफ के लिहाज से आप देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बेल है वो इसी बेस पर जो वर्क कर रही है। कि इलेक्ट्रिक बेल में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है तो उस वो जो एक स्पाइरल यानी स्पाइरल है, एक जो सोलेनॉइड टाइप का जो स्पाइरल मौजूद होता है जिसमें एक हिट करने वाली जो यानी रॉड मौजूद होती है। अब ये रॉड आयरन की है। इस स्पाइरल के अंदर जो स्पाइरल जो है कनेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी से और इसके सामने पेन मौजूद है। अब जैसे ही करंट पास होता है तो मैग्नेटाइज होने की वजह से ये जो रॉड है ये इस पेन की तरफ जो अट्रैक्ट होती है, पुल होती है, और स्प्रिंग की वजह से जो है बैकवर्ड जाती है। तो यहाँ पर ये करंट के पास होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से, करंट के पास होने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आया, और इस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हम ये देखते हैं कि ये बेल, इलेक्ट्रिक बेल जो है रिंग करती है। या इसी तरह से आप देखें कि एक स्टील नीडल है या नेल है, उस पर आप वायर को अगर लगा दें और इसे कनेक्ट कर दें सेल से, तो वहाँ भी ऑब्जर्वेशन आपके सामने ये आएगा कि इस नेल में जो है मैग्नेटिज्म आ जाएगा या मैग्नेटिक अट्रैक्शन आ जाएगी। उसकी रीज़न क्या हुई कि करंट के पास होने पर यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट मौजूद है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जब करंट के पास होने से आ रहा है तो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो हमें जो दे रही है वो कौन सी ब्रांच दे रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दे रही है। इसके साथ साथ देन हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, जब हमने एटम के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डील करना होता है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, तो हम डील करते हैं एटॉमिक फिजिक्स के साथ। एटॉमिक फिजिक्स की डिस्कवरी के बारे में यूँ आता है कि जब एटम से रेडिएशन जो है स्टडी में आया कि एटम से रेडिएशन होता है और इसी तरह से स्पेक्ट्रम बनता है, तो इस रेडिएशन की बेस पर जो एटम की के स्ट्रक्चर और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डील करने की बात आई, और इस एटॉमिक फिजिक्स का जो वर्क है वो लेज़र टेक्नोलॉजी की फॉर्म में हमारे सामने है। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में
कंप्लीट एटम के बारे में तो डील की जा रही है, लेकिन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स एटम के जिस पार्ट को डील कर रही है वो न्यूक्लियस है, यानी जस्ट न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स के जो रिएक्शंस हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं उसे डील कर रही है। मीन के स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज़। अब इसमें जो हैबिटेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जा रही है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसी तरह से इन न्यूट्रॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं उनको डील कर रही है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिहाज से कि भाई एक हैवियर न्यूक्लियस जो है लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरह से दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। ये असल में दो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। ये हमारे पास है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, एंड दिस इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सन पर कंटिन्यूसली ब्लास्ट होते हैं, ये हमने। नेक्स्ट ब्रांच इज द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ सॉलिड मटेरियल। जो सॉलिड मटेरियल है उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को यहां डील किया जाता है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। यानी इसको यूं आपके सामने में ईजियर वे में बताता हूं कि तीन तरह के मटेरियल होते हैं। दो तरह के मटेरियल के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक होते हैं कंडक्टर और दूसरे होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर यूजुअली ये वो हैं जो कि अलाउ करंट टू पास, और ये करंट को पास नहीं होने देते किसी तरह की भी कंडीशन हो। यूजुअली जो कंडक्टर्स हैं वो सॉलिड मटेरियल हैं जो कि यूजुअली मेटल्स होते हैं, और इंसुलेटर यूजुअली नॉन मेटल्स होते हैं। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स की स्टडी ने हमें एक और मटेरियल से इंट्रोड्यूस करवाया जिसके बिहाफ पर जो है, जिसके बेस पर हमारे पास एक और साइंस वर्क करी है, और कई हम ऐसी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं आज कि हम यानी एक बहुत बड़ी जो है डिस्कवरी का जो है क्रेडिट जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स को देते हैं, और वो है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो फेवरेबल कंडीशन में करंट को पास होने देते हैं बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइज, यानी इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइसेस जो हैं वो असल में सेमीकंडक्टर की बनी हुई हैं, यानी उसमें सेमीकंडक्टर यूज हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइसेस जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है वो असल में सॉलिड स्टेट फिजिक्स ही का एक फील्ड है, एक वर्क है, एक ज़बरदस्त एडवेंचर है कि पहले तो यानी ये दो तरह के मटेरियल हमारे सामने थे, लेकिन सेमीकंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो फील्ड है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल तौर पर वर्क कर रहा है। अगर आप देखें तो जो आज मॉडर्न डिवाइसेस हैं, एक छोटे से जो है मेमोरी कार्ड में बहुत बड़ा डेटा आ जाता है, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो उनके लिहाज से यानी ये तमाम तर जो सिलसिला है वहाँ पर सेमीकंडक्टर्स को वहाँ यूज़ किया जाता है, और ये सेमीकंडक्टर्स के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे डेली यूज़ में हैं। तो इस तरह हर एक यानी जो सॉलिड मटेरियल है उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डील किया जाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। देन दी ब्रांच इज प्लाज्मा फिजिक्स। कि प्लाज्मा फिजिक्स में हम डील करते हैं प्लाज्मा को, एंड दिस प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स, और इस मिक्सचर को हम कहते हैं हाईली आयोनाइज्ड एटम। दिस मिक्सचर इज टर्म्ड एज
हाईली आयोनाइज्ड एटम, यानी जब कोई एटम अपनी गैसियस फॉर्म में उसको इतनी हीट प्रोवाइड की जाती है कि उससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड फॉर्म में आउट हो जाते हैं, पीछे हमारे पास जो है रिमेनिंग पार्ट वो न्यूक्लियस रहता है विदाउट इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं बेयर न्यूक्लियस। तो ये जो बेयर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का जो मिक्सचर है, दिस इज कॉल्ड दी प्लाज्मा। अब इसकी एग्जांपल आपने कहाँ देखी होगी? इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी में, जहाँ डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि एक नियॉन गैस उस ट्यूब में यूज़ की जाती है, क्योंकि उस ट्यूब में वो गैस यूज़ करनी है जो इनर्ट हो, नॉन रिएक्टिव हो। तो उस पर जो वोल्टेज अप्लाई किया था क्रुक्स ने, और फिर जो है वोल्टेज को वोल्टेज और गैस के प्रेशर को जो है एक हद तक जो है एक मेंटेन किया, तो वहाँ उसको इलेक्ट्रॉन की या कैथोड रेज की डिस्कवरी का सामना वहाँ मिला था। तो नियॉन साइंस वो इसकी एग्जांपल है रियल लाइफ में। इसी तरह टीवी स्क्रीन जो है वो भी नियॉन ट्यूब ही की फॉर्म में है, तो ये प्लाज्मा की जो फील्ड है यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ नेक्स्ट में हमारे पास है जो ब्रांच, वो है एस्ट्रोफिजिक्स। कि एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद दी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आर दैट कंसर्न विद दी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को फिजिक्स की टेक्निक्स पर स्टडी करना। फिजिक्स जहाँ मैन के बेनिफिट्स के लिए जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को डील करती है, उसे फिजिक्स की जिस ब्रांच का नाम दिया है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इट इज कंसर्न विद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। यानी सन के अराउंड प्लैनेट्स मौजूद हैं, और इन प्लैनेट्स का सन के लिहाज से और एक दूसरे के लिहाज से जो इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल कि अर्थ के लिहाज से हम देखें तो अर्थ, सन या जिस तरह जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी आपस में एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी। अब ये प्लैनेट के उसके हैबिटेंट्स पर भी है और इन प्लैनेट्स के आपस में भी है। सो दिस इज फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटी। ये बाय द स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट्स हमें मिलती है। जिस तरह स्पिनिंग मौजूद है, इस स्पिनिंग ऑफ द अर्थ की वजह से ही ग्रेविटी मौजूद है। अगर आप देखें कि जहाँ पर नॉर्मली सैटेलाइट में या स्पेस में जब कोई शटल वगैरह जाता है, तो वहाँ पर आर्टिफिशियली जो है ग्रेविटी जो है डेवलप की जाती है बाय द स्पिनिंग ऑफ द शटल की स्पिनिंग से, वरना बिल्कुल यानी फ्लोटिंग कंडीशन होती है, फ्लोटिंग अंदाज से जो है वो मौजूद होते हैं, वो अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सकते। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की इस लिहाज से स्टडी ये एस्ट्रोफिजिक्स का काम है। देन लास्ट वन इज अ बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स की टेक्निक्स पर एक्सप्लेन करते हैं बायोफिजिकल सिस्टम को। अब बायोफिजिकल सिस्टम में आप यूँ समझ लीजिए कि फ्लाइंग ऑफ बर्ड, परिंदे की जो उड़ान है, परिंदे का जो उड़ना है, अब ये बर्ड जो है वो एयर पर एक्शन करता है, और इन बर्ड के विंग्स पर जो है जो एयर रिएक्शन करती है, इसकी बेस पर बर्ड इजीली फ्लाई कर सकता है, बर्ड फ्लाई कर सकता है। तो इस तरह से बायोफिजिकल सिस्टम की फिजिक्स की टेक्निक्स के मुताबिक जो एक्सप्लेनेशन, दिस इज कॉल्ड दी बायोफिजिक्स। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है विच इज़ रोल ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। रोल ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। वैसे तो इस टॉपिक को हम अपनी ब्रांचेस में साथ साथ डिस्कस करते चले गए कि मैकेनिक्स हेल्प कर रही है हमें एक्सप्लेनिंग दी वॉकिंग ऑफ मैन, इंसान के चलने को एक्सप्लेन कर रही है, उसमें हेल्प कर रही है, और किस तरह से हम अपनी मोशन को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, इस चीज़ को हेल्प कर रही है। इसी तरह से
इंजन्स वर्क कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की बेस पर, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है वो इंजन्स की डिज़ाइनिंग और उनके वर्क को एक्सप्लेन कर रही है। इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ करती हुई जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, फिजिक्स का फील्ड है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मैंने यहाँ डिस्कस किया। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमारे डेली यूज़ में हैं, ये भी फिजिक्स का वर्क है। इसी तरह से जो लाइट से रिलेटेड डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, आई से रिलेटेड जो लेंसेज डिज़ाइन किए जा रहे हैं, और किस पावर का लेंस मौजूद हो या कब लेंस की पावर पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, इसमें फिजिक्स हेल्प कर रही है। ऑप्टिक्स फिजिक्स, ऑप्टिकल फिजिक्स या फिजिक्स की जो ब्रांच है ऑप्टिक्स, जो लाइट पर वर्क कर रही है। इसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो ब्रांच है वो हमारी इलेक्ट्रिक जो मोटर्स हैं उनके वर्क में, या जो जनरेटर्स हैं इनके वर्क को जो एक्सप्लेन कर रही है और हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल है। तो इस लिहाज से वैसे तो रोल फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ मौजूद नहीं है, ये कह देना बड़ा एक नैरेटिव वे में जो है इसके रोल ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करना होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ देखें हर पहलू में जो है हमारे पास, हमारे एक सांस लेने में, एयर को इनहेल करने में और एक्सहेल करने में बॉयल लॉ या प्रेशर लॉ जो यूज़ हो रहा है, बॉयल लॉ, कि जहाँ प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है तो वहाँ वॉल्यूम ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्वीज आउट हो जाता है या श्रिंक कर जाता है वॉल्यूम, और जहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे फिज़िक्स से रिलेटेड हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, और इसके अलावा डेली लाइफ में हमारे सामने आती हैं। अगर किसी बॉडी को हीटअप करने की बात हो, वहाँ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं और उससे जो वर्क कर रहे हैं, तो प्रेशर कुकर की जो डिज़ाइनिंग है, प्रेशर कुकर का जो वर्क है, अब उसमें भी आप देखें एनर्जी जो दी जा रही है मैटर को, और उसके ज़रिए जो है प्रेशर डेवलप हो रहा है, और उससे हम क्या कर रहे हैं, ईजिली जो है अपने फूड को कुक कर सकते हैं फॉर दी लिमिटेड टाइम। तो इस तरह मैनी अदर वर्क्स आर डन ऑल अराउंड अस और कैन बी एक्सप्लेन ईजीली।